Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening to all of you. In the last class, we are discussing about the digestive system. We have already discussed the carbohydrates, fats, protein. Today, we will start the topic for vitamins. Take your notebook. Our body needs vitamin in very small quantities. Vitamins do not give energy, but they are essential for the growth and maintenance of our body. What is the role of vitamin? First of all, हम लोग जानेंगे vitamins का क्या role है. Write down vitamins. Don't shake it. देखो, our body needs vitamins in very small quantities. Our body needs vitamins in very small quantities. Full stop. Vitamin in Very small quantities. Our body needs vitamin in very small quantities. Next point लिखेंगे vitamins do not give energy. Vitamins do not give energy, but they are essential. For the growth and maintenance of our body. But they are essential for the growth and maintenance of our body. But they are essential for the growth and maintenance of our body. So Vitamins do not give energy, but they are essential for the growth and maintenance of our body. लिखोगे our body. But they are essential for the growth and maintenance of our body. Full stop. Some example of vitamins are A. Some examples of vitamins are A, B, C, D, E, and K. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, and K. Next heading, minerals. लिखोगे our body needs minerals. Our body needs minerals like calcium. our body needs Minerals like calcium, iron, 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 iodine, iodine, phosphorus, 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 sodium, fluorine in small quantity. the forest. Phosphorus, sodium. Yes, I will explain. Wait. Sodium, fluorine in small quantities. For example, calcium and phosphorus
and phosphorus, For example, calcium and phosphorus are essential for bone formation. are essential for bone formation. Our body needs minerals like calcium, iron, iodine, phosphorus, sodium, fluorine in a small quantity. For example, calcium and phosphorus are essential for bone formation. Next, iron is essential for bone formation. Iron is essential for hemoglobin. HAEMOGLOBIN, hemoglobin. Next, sodium and potassium. ठीक है, सोडियम एंड पोटासियम maintain water balance in our body. Sodium and potassium maintain water balance in our body. Maintain water balance in our body. Okay? No, stop writing. In the last class we have discussed about the फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था. क्या बताया था? एनर्जी गिविंग फूड है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. फैट्स रिच इन, ठीक है. क्या कहता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को एनर्जी मिलता है. क्या होता है? सम मोर एनर्जी. ठीक है. क्या कहता है? फैट्स आर ऑल्सो द कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. फैट्स प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स क्या करता है? मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो उसके बाद फिर हम लोग क्या बात किए थे? प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है. हमारे बॉडी को क्या करता है? बिल्डअप करता है. बिल्डअप करता है. ठीक है. क्या कहता है? सबसे पहले कि बॉडी को बिल्डअप करने में प्रोटीन हम लोगों का हेल्प करता है. जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वो कहां से करते हैं? मीट, मिल्क. एंड जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो कहां से करते हैं? पल्सेस. क्या लिखवाए थे लाइन? Poor's man meat. Pulses are known as poor man meat. Okay. सर ये वाला लाइन फिर से. Pulses are known as poor's man meat. मतलब जो क्या है कि जो एक व्यक्ति जो हमारे नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, जो मीट से एनर्जी इतना प्राप्त करते हैं, तो पल्सेस भी क्या है? एज कम्पेयर टू पल्सेस. और अगर हम लोग सोर्स ऑफ प्रोटीन देखें, ठीक है, तो क्या कहता है कि जहां हम लोगों का मीट है, ठीक है, उसी जगह पे हम लोगों का क्या? पल्सेस है. पल्सेस है. ठीक है. तो दोनों हम लोगों का एक दोनों में सेम प्रोटीन है. ठीक है. दोनों हम लोगों का क्या? प्रोटीनियस है ना. और नहीं खरीद सकता है. सेकंड और फर्स्ट हम लोगों का क्या है कि वो वेजिटेरियन है, तो वो खरीद करके भी क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? लेकिन अपना कमी कैसे पूरा करेगा? प्रोटीन अपने बॉडी में कहां से लाएगा? पल्सेस से लाएगा. ठीक है. अभी हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले विटामिन के बारे में. ठीक है. सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो कहता है आवर बॉडी नीड्स विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज. विटामिन की बॉडी में हमारे जरूरत होती है, बट स्मॉल क्वांटिटीज में. ठीक है. बहुत ही ज्यादा जरूरत नहीं होती है, स्मॉल क्वांटिटीज में. जैसे एक तुम लोग पढ़े होगे लाइन, एन एपल अ डे कीप ए डॉक्टर अवे. ठीक है. एन एपल अ डे कीप ए डॉक्टर अवे. ठीक है. रोजाना एक सेब खाएं और तंदुरुस्त रहें और डॉक्टर से दूर रहें. ठीक है. लेकिन वहां पे क्या होता है कि कितने प्रतिशत लोग ऐसा होता है कि फ्रूट्स को अपने डाइट ठीक है, बैलेंस डाइट चार्ट पे इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. कितने परसेंट लोग? अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बात करें तो 40%. इससे ज्यादा अधिक लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कंट्री में, ठीक है, क्या है
कि बिलो द पॉवर्टी लाइन बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। बिलो द पॉवर्टी लाइन क्या होता है? गरीबी रेखा से नीचे, ठीक है। गरीबी रेखा को दर को छूट चुके हैं, मतलब उनके पास क्या है, खाने को अच्छा फूड नहीं है, तो वो कहाँ से यूज कर पाएंगे? क्या? फ्रूट, ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे खा पाएंगे, ठीक है। इस वजह से देखो क्या कहता है कि हम लोग 40% लोग यूज करते हैं, तो वो हम लोगों का क्या है, स्मॉल एंड ट्रेसेस एलिमेंट है, ठीक है। काफी कम भी अगर हम लोगों की बॉडी को, जैसे क्या होता है, कहता क्या है कि विटामिन प्रोटेक्टिव फूड है। आवर बॉडी नीड्स विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन डू नॉट गिव एनर्जी बट दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, ठीक है। क्या कहता है? दे हेल्प द प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। ये तीनों चीज को वो मेंटेन करता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। जैसे तुम क्या करते हो कि एप्पल लेते हो, ठीक है, और कोई भी फ्रूट्स खाते हो, तो तुमको क्या होता है कि विटामिन के जितने भी हम लोगों के विटामिन ए हैं, बी हैं, मिल जाते हैं। जैसे हम लोग कोरोना के टाइम में विटामिन सी बढ़ाने के लिए कहा जाता था, ठीक है। तो विटामिन सी कैसे बढ़ाएंगे? डी बढ़ाएंगे, विटामिन डी, ठीक है। जहां हम लोगों का क्या होगा कि फ्री ऑफ सोर्स मिलेगा, सनलाइट से ले लेंगे, ठीक है। विटामिन से सिट्रिक से बढ़ता था, ठीक है, कोई भी है ना, खट्टा। तो उस समय तुम देखे होगे कि नींबू, लेमन, ठीक है, ऑरेंज, ये सब का क्या होता था, क्रेज होता था, और उसी चीज को लोग इस्तेमाल करते थे अपने डाइट में, ठीक है। उसके साथ साथ देखो क्या बताया जा रहा है, मिनरल्स। कहता क्या है? बैलेंसिंग फूड। मिनरल्स क्या करता है कि जब हम लोगों का पूरा ये एक प्लेट है, इसमें बहुत सारा हम लोगों का क्या है, फूड है, ठीक है। उसके साथ हम लोग इतने फूड में क्या किए, थोड़ा सा कुछ सॉल्ट डाल देते हैं। देखते हो सारे फूड को मिक्सअप, और कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, उसको और भी ज्यादा जायका बढ़ाने के लिए, मतलब उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है कि जब हम लोग उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो बस वैसा ही हम लोगों का क्या करता है, मिनरल्स भी रोल प्ले करता है बैलेंसिंग फूड में। आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स लाइक द कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, ठीक है। क्या कहता है? दूध पीजिए, कैल्शियम होगा, ठीक है। आयरन क्या होगा कि बनाना है, और क्या क्या है आयरन से, ठीक है। बहुत सारे हम लोगों के क्या होते हैं, लोहा, ठीक है। बॉडी में जो हम लोगों में क्या, आयरन, ठीक है। बहुत सारे तुम मेडिसिन के लिफलेट्स को देखे होगे, ठीक है, वहां पे तुम देखोगे लिखा होगा आयरन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो वहां पे वो क्या कर रहा है, हम लोगों के बॉडी को जो अदर एलिमेंट्स की जरूरत है, ठीक है ना, स्पेनिश खाएंगे, साग खाएंगे, जिससे क्या होगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कहता है कि फास्फोरस है, सोडियम है। अब हम लोग जाने की कौन अपना रोल कहाँ पे प्ले करता है। कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल कैल्शियम एंड फास्फोरस आर एसेंशियल फॉर बोन फॉर्मेशन, ठीक है। कैल्शियम, अगर हम लोगों को अपने बॉडी के क्या करना है, हड्डी को मजबूत करना, बोन्स को, ठीक है, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है तो कैल्शियम वाला फूड खाइए, ठीक है। जैसे क्या होता है कि देखो लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, जैसे कैल्शियम क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं चूना, ठीक है। तो वो हम लोगों का व्हाइट जो होता है ना, तो क्या होता है, बहुत सारे कुछ केमिकल्स में रिएक्शन में बताए गए हैं, ठीक है। आगे जानना कि अगर तुम लिटिल अमाउंट भी अपने बॉडी के अंदर ले सकते हो। जैसे क्या होता है कि जो लोग कुछ क्या कहते हैं, नशे का सेवन करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो है ना, बहुत सारा है, ठीक है। उसके साथ साथ तुम देखोगे कि क्या होता है कि कैल्शियम को भी वो क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो अगर वो क्या करेगा, बॉडी में बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारे बॉडी को पूरी तरह से, सबसे पहले तो हार्ड भी बना सकता है, या पूरे बॉडी को तुम्हारे क्या कर सकता है, डिजॉल्व भी कर सकता है, ठीक है, घुला सकता है। ठीक है। कैल्शियम एंड फास्फोरस आर एसेंशियल फॉर बोन फॉर्मेशन। आयरन इज नीडेड फॉर ग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, ठीक है, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन बढ़ाता है। कहता है क्या, सोडियम एंड पोटासियम मेंटेन द वाटर बैलेंस, ठीक है। वाटर बैलेंस को वो क्या करता है, मेंटेन करता है। जब हमारे बॉडी में क्या होता है, देखोगे तुम कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। पानी क्या हो गया, पूरे बॉडी से, शरीर से निकल गया, ठीक है। ट्रांसपीरेशन प्लांट में होता है, भूल जाओ, बॉडी में नहीं, ठीक है। वहां क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से वाटर को क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर डाला जाता है, ठीक है। देखोगे सलाइन वगैरह लगा करके, ठीक है। जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। कहता है नेक्स्ट हेडिंग डालोगे,
प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या हेडिंग डालोगे? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लिखोगे, फूड इज द फ्यूल दैट कीप आवर बॉडी अलाइव। फूड इज द फ्यूल दैट कीप आवर बॉडी अलाइव। फूड इज द फ्यूल दैट कीप आवर बॉडी अलाइव। Alive, A-L-I-V, full stop. Different organisms have process of nutrition in our body. Food is the essential fuel that keep the body alive. Full stop. Different organisms have adopted various physical and chemical process. Adopted various physical and chemical process of handling food. Various physical and chemical process of various physical and chemical, किसका स्पेलिंग चाहिए? VARIOUS, various physical and chemical process of handling food. Handling, HANDLING, handling food. Full stop. Food. Without leaving any line, take a new line and write there. First write in continue form. This process is called nutrition. This process is called nutrition. Continue लिखोगे. This process is called nutrition. NUTRITION. Now take a new line. लिखोगे. It comprises of. Take a new line. It comprises of ingestion. It comprises of ingestion, digestion, सेकंड आप नंबर डाल के लिखोगे, डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, okay, and the last one is egestion. Okay, first we are talking about the process of nutrition in our body. ठीक है, सबसे फर्स्ट लाइन हम लोग क्या बात की? प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी। मैंने क्या लाइन बताया आप लोगों को? फूड इज द एसेंशियल फ्यूल दैट कीप आवर बॉडी अलाइव। ठीक है, हर एक बॉडी को फ्यूल चाहिए। जैसे हम लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसमें भी हम लोगों को क्या होता है? फ्यूल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वहां अगर फ्यूल खत्म हो जाता है तो हम लोगों का बाइक क्या होता है? रुक जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों के बॉडी को फूड नहीं मिलेगा तो हम लोगों का बॉडी भी क्या होगा? ठीक है, कमजोर होगा। ठीक है, वीक हो जाएगा धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो वहां हम लोग क्या करते हैं? वापस से फ्यूल, अगर हम लोगों का बाइक है, कार है, कोई भी मोटर व्हीकल है, तो हम लोग वापस से डालते हैं तो फिर वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बट वो स्टार्ट नहीं होगा। क्या? आवर बॉडी कहता है क्या है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव अडॉप्टेड
वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग द फूड। फूड को हैंडल करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस अराइज करते हैं, ठीक है, स्टार्ट होते हैं और वहां हम लोगों के बॉडी के अंदर क्या होता है वो वर्क करते हैं। जैसे अभी हम लोग वन बाय वन बात करेंगे। कहता है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, और वहां से हम लोगों के बॉडी को क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फर्स्ट 5 वेज है, ठीक है, 5 वेज विच वी फॉलो। फर्स्ट ingestion, ingestion that means intake of food, ingestion that means intake of food into the mouth. Next digestion, ठीक है, when food, this is called the food particles, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे देखोगे डाइजेशन के प्रोसेस में हर तरफ से इसको हम लोग क्या करना शुरू करेंगे, क्रश करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे इनटू द स्मॉलर पीसेस, ठीक है। वी विल स्टार्ट ब्रेकिंग इट इनटू द स्मॉलर पीसेस, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस में टूट जाएगा। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, फिर हम लोगों का वो धीरे 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 क्या करेगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जो वो क्या करेगा, फूड का जो हम लोगों का डाइजेशन के बाद जो हम लोगों का क्या होगा कि फाइनल प्रोडक्ट बचेगा, ठीक है, वो हम लोगों के बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा। क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। जो हम लोगों का बॉडी क्या करेगा, ये जूसेस बनाएगा, ठीक है। जो हम लोगों का क्या करेगा, रेसिड्यू पार्टिकल्स को अलग कर देगा और उससे एनर्जी को बाहर निकालेगा। फिर हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, वो हम लोगों का यहाँ टूटना शुरू हुआ था, यहाँ से देखोगे, लेट मी टू चेंज, ठीक है। ये क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो भी हम लोगों का क्या होता है जूसेस बनता है, ठीक है, जो ब्लड स्ट्रीम में चेंज होता है वो हम लोगों के बॉडी में फिर क्या होता है वो रेगुलेट होना शुरू होता है। क्या कहता है, द एब्जॉर्ब फूड इज कंज्यूम बाय द बॉडी ग्रोथ फॉर रिपेयर एंड द बॉडी सेल्स, जिसकी वजह से हम लोगों के बॉडी क्या होते हैं, ग्रोथ करते हैं और सेल्स को रिपेयर करते हैं। एंड द लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड द, ठीक है, इजेशन। लास्ट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इजेशन में क्या होंगे, रिमूवल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। जो इतने भी हम लोगों के क्या होंगे, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन होंगे फूड के, जितना भी हम लोगों का रेसिड्यू पोर्शन होगा वो हम लोगों के बॉडी से क्या होगा, बाहर चला जाएगा, क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है, व्हेन द फाइनल रेसिड्यू और अनडाइजेस्टेड फूड come out through the anus. Okay, these all are about today. In the next class we will discuss about the next topic. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.